ये पंखा बंद कर दो। ये काम Hello students, good afternoon all of you. We'll wait for 5 minutes, let others join the session. Okay, fine. Once again, good afternoon. So we'll start with the features. Then I will show you the programming again. जो last lecture में हमने programming किया था, उसको अभी there are two mode to do a programming. One is interactive mode and one is script mode. Interactive mode मैंने आपको already last lecture में showcase किया था कि कैसे करना है direct command prompt में. You can just directly write the code in command prompt itself. Now we'll learn about script mode में कैसे करना है program. Fine. So before that, we'll start with the basic topic, that is the features. ये exam में आता है ये question. What is a Python? Python का basic features क्या है और दो मोड कौन से होते हैं, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. फाइन. सो विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट टॉपिक फर्स्ट विद द पाइथन features, then we'll move to the practical one again with the script mode. Now, so as we already learned, Python interpreted है, Python is interactive, Python object oriented है और ये beginner language है. Fine. So the new what are the features? First, easy to learn. Fine. The first feature of Python is what? Easy to learn. Easy to learn means it has very very simple structures and has a few keywords, and there is a no punctuation. Fine. So there is a no punctuation. Punctuation means semicolons, curly bracket. That these are the syntax. So punctuations नहीं है. Very few keywords है. Simple structure है. Clearly defined syntax है. This allows student to pick up the language quickly because इसके syntax बहुत ही basic है और simple है comparing to C programming language. So it's a easy to learn. Next, easy to read भी है. So Python code is more clearly defined and visible the eyes. Like a math. मैंने आपको already last lecture में आपको notepad पे करके दिखाया था program. Easy to read. Like a is equal to 10 assign किया, b is equal to 10 assign किया, c is equal to a plus b. And finally, then we printed that values of c in a function of a print. So this is what easy to read. Like
It's look like a mathematical term more about. Fine. So Python code is more clearly defined and visible to the eyes. Easy to maintain. So देखो, easy to learn, easy to read and easy to maintain. The Python source code is fairly easy to maintain. Easy to maintain मतलब आपके जो कोड है उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो इजी होता है. मतलब अगर आपको कोड में कुछ नया एड ऑन करना है या कुछ नई चेंजेस करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको न्यू कोड आप पुटअप कर सकते हो. क्या? प्रिंट एडिशन. फाइन. सो दैट इज व्हाट इजी टू मेंटेन. आप कोड को इजिली मेंटेन कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. सो व्हाट इज अ लाइब्रेरी? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमने सी में पढ़ा है ना, लर्न किया है. स्टूडियो लाइब्रेरी, कोनियो लाइब्रेरी. सो व्हाट इज द पर्पस? वहां पे हेडर फाइल्स बोलते हैं. फाइन. इन अ सी लैंग्वेज वी कॉल एज अ हेडर फाइल्स. फाइन. सो व्हाट इज अ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? चैट में कैन गिव अ आंसर. चैट बॉक्स में. इफ यू नो, नहीं पता है तो नो. इफ यू नो टाइप यस, इफ यू डोंट नो टाइप नो. अगर आपको पता है तो बताओ. व्हाट इज अ लाइब्रेरी? डज एनीवन नो व्हाट इज अ लाइब्रेरी? मैंने अभी थोड़ा सा आपको हिंट दिया. सी प्रोग्रामिंग में हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं. फाइन. सी लैंग्वेज में हियर वी कॉल एज लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स. फेयरली ओके. सो देखो, व्हाट इज अ लाइब्रेरी? बिल्ट इन फंक्शन होते हैं. यस, some short right. Okay. Libraries are predefined codes. Fine. There are predefined codes already. आपको functions code बना के दिया हुआ है जिसको आपको यूज करना है. So बहुत मतलब there are broad. So मतलब variety of libraries are already Python में built है. So आपको नहीं बनाना है. Fine. We have to just directly use. So there are libraries. Socket programming के related है आपको. फिर आप मेल भेज सकते हो, एसएमएस कर सकते, ईमेल रिलेटेड है. फाइल ऑपरेशन, आप फाइल को रीड राइट कर सकते हो. तो दीज आर द लाइब्रेरी विच इज ऑलरेडी बिल्ट इन अ पाइथन. और दैट इज अ ब्रॉड मतलब बहुत सारा सेक्शंस, बहुत सारे टाइप के कैटेगरी के लाइब्रेरीज अवेलेबल है. ओके. सो देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल इन पाइथन. एंड लाइब्रेरी आर नथिंग बट दे आर प्री डिफाइंड कोड्स विच इज ऑलरेडी मेड बाय द कम्युनिटी डेवलपर्स. कम्युनिटी डेवलपर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को मैनेज करती है, फ्रीलांसर बोलते हैं. दे डू दैट. फाइन. अगर मुझे भी आता है तो आई कैन आल्सो मेक सम कोड फॉर पाइथन एंड आई कैन अपलोड ऑन द पाइथन कम्युनिटी. एंड पाइथन ऑलरेडी आपको बताया मैंने ओपन सोर्स है. इट्स अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. फाइन. सो इट्स फेयरली ओपन. द कोड ऑफ पाइथन इज फेयरली ओपन टू ऑल एंड यू कैन यूज फेयरली. You can use that Python code without paying any amount. It's a open source. कृष्णा, वॉइस का इशू सबको हो रहा है. वॉइस इज क्लियर और नॉट? फाइन. माइट बी नेटवर्क की वजह से इशू रहेगा. फाइन. अदरवाइज देयर इज नो सच इश्यूज. नेटवर्क रहेगा आपके एंड पे या मेरे एंड पे नेटवर्क का इशू रहेगा. बिकॉज ऑफ दैट वॉइस ब्रेक हो रहा होगा. Now, so library are a predefined. Library are basically a predefined codes. So Python bulk of library is very portable. Cross देखो, very portable and a cross platform compatible, which is very important. मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोड रन कर सकते हो. सो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब भी वही होता है
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सो पाइथन का कोड हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, दैट इज यूनिक्स, विंडोज, मैकिंटॉश। ऐसा नहीं है कि आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग लाइब्रेरी लगी। देखो सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो लाइब्रेरी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग लाइब्रेरी होती है। जो विंडोज की है वो अलग होगी, यूनिक्स के लिए अलग होगी, मैकिंटॉश मतलब एप्पल का प्रोडक्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए अलग होगी। बट पाइथन का एक ही लाइब्रेरी सेट है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबल क्यों है? बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्यों है? क्योंकि पाइथन का कोड इंटरप्रेटेड है, और इंटरप्रेटेड का मतलब होता है आपका कोड हर बार कन्वर्ट होगा बाइनरी कोड में जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करोगे। फाइन। वेयर सी सी प्लस का कोड एक ही बार कंपाइल होता है, तो वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपाइल हुआ है, तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उस कोड को रन नहीं कर सकते। फाइन। दैट इज व्हाट क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी ऑन यूनिक्स, विंडोज एंड मैकिंटॉश। नेक्स्ट वी हैव अ इंटरैक्टिव मोड। यस, देयर इज अ इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड का मतलब क्या होता है? वी कैन इजिली, मतलब आप डायरेक्टली पाइथन के इंटरप्रेटर से डायरेक्टली आप कमांड दे सकते हो। पाइथन के इंटरप्रेटर को डायरेक्टली आप कमांड इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। दैट इज व्हाट इंटरैक्टिव मोड। पाइथन हैज अ सपोर्ट फॉर इंटरैक्टिव मोड व्हिच अलाउ इंटरैक्टिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ अ स्निपेट ऑफ कोड। आप डायरेक्टली पाइथन से इंटरैक्ट कर सकते हो उसके इंटरप्रेटर से, और कोड को आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो, डिबग कर सकते हो। पोर्टेबल, पाइथन पोर्टेबल का मतलब वही है, पाइथन कैन रन ऑन एनी वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड हैज द सेम इंटरफेस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। ये पोर्टेबल का मतलब आप कोड को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आप पाइथन के कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हार्डवेयर पे आप रन कर सकते हो। दैट इज रिलेटेड विद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। So Python can run on wide variety of hardware platform and has the same interface on all platform. Next, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेबल का मतलब होता है आप पाइथन में नए मॉड्यूल्स ऐड ऑन कर सकते हो, पाइथन में नया कोड आप ऐड कर सकते हो, नए लाइब्रेरीज बना। लाइक अगर मुझे इफ आई, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सी लैंग्वेज में पाइथन के मॉड्यूल बनाते हैं। फाइन। पाइथन का इंटरप्रेटर जो है, पाइथन का जो पूरा लाइब्रेरी है वो सी लैंग्वेज में बना हुआ है। तो अगर मुझे सी लैंग्वेज आती है तो आई कैन मेक अ कोड इन सी लैंग्वेज, एंड मेकिंग दैट कोड इन सी लैंग्वेज आई कैन ऐड, मतलब आप पाइथन में नया कोड डाल सकते हो। सो जो लाइब्रेरी है वही क्या है, मतलब आप लाइब्रेरी बना बना के पाइथन में ऐड ऑन कर सकते हो। तो कुछ लाइब्रेरीज जो है वो इनबिल्ट आती है पाइथन के थ्रू, और कुछ लाइब्रेरी हम लोग कंपनीज या हम लोग एज अ फ्रीलांसिंग डेवलपर या स्टूडेंट आप बना सकते हो, और वो पाइथन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। सो आई कैन राइट सम कोड फॉर पाइथन, दैट इज व्हाट एक्सटेंडेबल। यू कैन ऐड, देखो यू कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल। लो लेवल मॉड्यूल का मतलब ही होता है, देखो मॉड्यूल बना, आप नया मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, नया लाइब्रेरी ऐड कर सकते हो। और लो लेवल का मतलब क्या होता है? लो लेवल मतलब आपका सी लैंग्वेज, सी जो है वो लो लेवल की कैटेगरी में भी आता है और हाई लेवल की कैटेगरी में भी आता है, बिकॉज सी लैंग्वेज से आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट लो लेवल मॉड्यूल टू द पाइथन इंटरप्रेटर। आप पाइथन के इंटरप्रेटर को लो लेवल मॉड्यूल ऐड कर सकते हो। लो लेवल मॉड्यूल का मतलब हो गया सी लैंग्वेज में लिखे गए कोड को हम बोलते हैं लो लेवल मॉड्यूल्स। फाइन। सी हाई लेवल भी है और लो लेवल भी है। लो लेवल क्यों है? बिकॉज सी के थ्रू आप डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हो। सो वी कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल टू पाइथन इंटरप्रेटर। Now this module enables programmers to add, fine। So ये मॉड्यूल आपको एनेबल करता है प्रोग्रामर को टू ऐड और कस्टमाइज देयर टूल टू बी मोर एफिशिएंट। तो आप एज अ प्रोग्रामर नया कोड पाइथन में ऐड कर सकते हो या पुराने कोड को कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये पॉइंट समझा? एक्सटेंडेबल। एक्सटेंशन होता है ना, जैसे अभी हम लोग को अगर पावर सप्लाई चाहिए तो हम लोग को एक्सटेंशन वायर लगाना पड़ता है। फाइन। वैसा ही है ये, पाइथन के अंदर आपको कुछ नया फीचर चाहिए तो आप उसमें सी में कोड लिख के आप पाइथन में ऐड कर सकते हो, फिर बाद में इसको यूज कर सकते हो। और वो जो लो लेवल कोड है वो सी प्रोग्राम का कोड बोलते हैं उसको, लो लेवल। तो प्रोग्रामर
these मॉड्यूल्स एनेबल करता है, मतलब प्रोग्रामर को एक फैसिलिटी देता है कि प्रोग्रामर अपना नया कोड पाइथन में ऐड कर सकता है, या तो पुराने कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो दैट मोर एफिशिएंट हो जाए आपका प्रोग्राम. नाउ पोर्टेबल हो गया, ये वाला हो गया. अभी नेक्स्ट डेटाबेस. यस, लाइक अ वेब प्रोग्रामिंग पीएचपी से हम लोग ने डेटाबेस का कोड इंटरेक्ट किया था, MySQL. सेम यहाँ पे भी पाइथन प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेस, मतलब आप पाइथन के कोड से डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हो, सेम लाइक अ पीएचपी कोड. पीएचपी से हम लोग ने MySQL डेटाबेस को कनेक्टिविटी किया था. सेम वी कैन डू हियर ऑल्सो. पाइथन में भी आपको बहुत सारा इंटरफेस, बहुत सारी लाइब्रेरी दी हुई है जिसके थ्रू आप जितने भी डेटाबेस है, कमर्शियल डेटाबेसेस है. कमर्शियल डेटाबेस का मतलब होता है MySQL. देखो कितने सारे डेटाबेस है आपको पता नहीं रहेगा, आपको एक दो का ही नाम पता रहेगा. विल शो. आपने अभी तक देखो यहाँ पे MySQL हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग ने इसको वेब प्रोग्रामिंग PHP में यूज किया था. दैट इज फाइन. नेक्स्ट पे क्या है? PostgreSQL, Microsoft SQL सर्वर, Oracle, SAP, DB2. ये बहुत वैरायटी ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेस है. मतलब सबका अगर आप कंसिडर करोगे सबका काम सेम ही है, बट सब में कुछ फीचर्स है, कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स है. सबका मेन जो ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस का वो सबका सेम है, बट उनका जो डिजाइन है, उनका जो लैंग्वेज में बना है वो अलग अलग है. किसी का परफॉर्मेंस हाई है, कोई फ्री है, कोई आपका पेड है. जैसे सैप आपका फ्री नहीं आता है, DB2 फ्री नहीं आता है, आपको MySQL फ्री मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर आपको फ्री मिलता है, Oracle फ्री नहीं मिलता है आपको. सो दैट इज व्हाट फाइन. मोर और लेस सबका काम एक ही है, बट सबका अलग अलग फीचर है, सबके अलग अलग प्राइस है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज करोगे. सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में डेटाबेस यूज होता है वो Oracle यूज होता है. Oracle यूज होता है. बैंकिंग, पूरा वर्ल्ड का जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो Oracle और DB2 को यूज करता है. पूरे वर्ल्ड का जो बैंकिंग सिस्टम है, Oracle एंड DB2. वेराज वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है, वर्ल्ड की 40 से 50% वेबसाइट जो बनी है, उसका जो बैकएंड है वो MySQL है. तो ये दोनों डेटाबेस है ना, Oracle और MySQL, सबसे ज्यादा यूज्ड होते हैं इंडस्ट्री में, MySQL और Oracle. और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब बड़े बड़े कंपनियों का प्रोजेक्ट होता है, वो लोग यूज करते हैं ये PostgreSQL. बहुत लोगों का ना नेटवर्क का इश्यू है, बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. आई थिंक अर्ली मॉर्निंग लेक्चर रखना पड़ेगा, तब सब सोते रहेंगे, तभी नेटवर्क इशू नहीं रहेगा बैंडविड्थ का. फाइन. ये समझा डेटाबेस, वैरायटी ऑफ डेटाबेस. सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा? MySQL होता है. वर्ल्ड के 40 to 50% वेबसाइट्स में MySQL यूज हो रहा है, जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिकली लर्न किया हुआ है, PHP विद MySQL कनेक्टिविटी इन वेब प्रोग्रामिंग में. और अभी नया जो है वो है Oracle एंड DB2. ये वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम में पूरा यूज होता है डेटाबेस. सो डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट. सो वी हैव अ ऑप्शन इन अ Python. We can connect and communicate with all variety of databases available in the industry. Fine. विराज रात को 12. आई एम रेडी. सबको अगर मॉर्निंग में 6 o'clock एंड नाइट 12 o'clock, कोई प्रॉब्लम नहीं. वर्क फ्रॉम होम. ठीक है, डोंट डू डिस्कशन. 6 चलेगा. ब्रिकुंज गांव में सब उठ जाते 6 बजे मॉर्निंग में. यहाँ पे मुंबई में वेकेशन टाइम में तो 9 बजे तक उठ के उठते हैं, 9 o'clock या 10 o'clock बजे तक सबका स्लीपिंग टाइम है. तो देखो माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस कंपनी ने बनाया है विंडोज को, उसकी कंपनी का डेटाबेस है ये.
ये भी यूज होता है बट इतना नहीं, बाकी कंपेयरिंग पर है यूज। फाइन। पाइथन में लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं होते, डायरेक्ट करते हैं ना। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब मॉड्यूल्स होता है, आपको फंक्शन कॉल करना पड़ता है। फंक्शन क्यों नहीं, फंक्शन कॉन्सेप्ट सब जगह पे है, सब जगह पे फंक्शन कॉन्सेप्ट है। और दैट इज अ इनबिल्ट फंक्शन, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। और जो हम बनाते हैं वो यूजर डिफाइन फंक्शन। अभी प्रिंट क्या है, जो प्रिंट फंक्शन यूज किया वो क्या है, प्रिंट फंक्शन। वो तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है ना, लाइब्रेरी फंक्शन ही उसको बोलेंगे, इनबिल्ट फंक्शन ही बोलेंगे। फाइन। तो वो लाइब्रेरी हो गया, उसको आप लाइब्रेरी बोलो, मॉड्यूल बोलो, यू कैन से एनीथिंग। फाइन। तो वो लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। जो हम बनाएंगे फंक्शन, व्हाट वी डिफाइन इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। फाइन। सो डेटाबेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। MySQL वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज डेटाबेस है। जितनी भी वर्ल्ड की वेबसाइट डेवलप होती है वो सब MySQL के अंदर डेवलप होती है, और हम लोग ने भी इसको प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। अभी हम लोग ऑरेकल में, ऑरेकल वर्ल्ड का सबसे यूज डेटाबेस है बैंकिंग सिस्टम के लिए। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बैंकिंग है वो लोग सब ऑरेकल, DB2 और SAP को यूज करते हैं। दीज आर थ्री डेटाबेस व्हिच इज यूज्ड फॉर द बैंकिंग सेक्टर। फाइन, मोस्ट रिलायबल। और आपको पता रहेगा ऑरेकल का जो प्राइस है वो 30 to 40 लाख रुपीज ईयरली होता है ऑरेकल का। सैप का मोर देन 1 करोड़ रुपीज है कॉस्ट पे करना। कंपनीज को, बैंक को पे करना पड़ता है। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपीज ईयरली पे करना पड़ता है इन डेटाबेसेस को यूज करने के लिए। ये बहुत कम अमाउंट बोल रहा हूँ, छोटे बैंक के लिए बोल रहा हूँ। फॉर द लार्ज बैंक दे स्पेंड लॉस ऑफ मनी फॉर द डेटाबेस। फाइन। सर्वर भी इनको खरीदना पड़ता है। तो हम लोग के एज अ स्टूडेंट लेवल पे या छोटी कंपनी के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल ही ऑप्शन अवेलेबल है। सो दैट इज व्हाट डेटाबेस। कम अमाउंट बोला मैंने, हाँ, ये बहुत कम अमाउंट बोला है मैंने। सैप तो मोर देन 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लेता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, बड़े बड़े। मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं ना, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। बैंक, अभी SBI बैंक के पास मोर देन करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर बैंकिंग अकाउंट्स है। तो 10 करोड़ यूजर्स के रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए बहुत ह्यूज ऑफ सर्वर चाहिए, बहुत सर्वर चाहिए, बहुत सारा डेटाबेस चाहिए। तो फिर उतना लेवल पे मैनेज करने के लिए तो उतना एक्सपेंस लगेगा ही ना। एक छोटी कंपनी के लिए अगर 10,000 बोल रहे हैं, एक एक कंपनी है जिसमें 10 एम्प्लॉई है, अगर एक SBI है जहाँ पे 40-50 हजार एम्प्लॉइज है और इतना बड़ा नेटवर्क है, तो उसको मैनेज करने के लिए इतना बड़ा एक्सपेंस लगेगा ही। फाइन। सो और उनका सिस्टम वैसा रहता है, क्रैश नहीं होगा, उनके पीछे टीम काम करते, तो है उतना कॉस्ट है। और वो बहुत कम कॉस्ट बोला मैंने आपको, एक जस्ट फेयर आइडिया देने के लिए। प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं। TCS जो प्रोजेक्ट बनाती है ना, TCS कंपनी किसके लिए बनाती है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो वर्ल्ड का, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटर का, ये टरबाइन मोटर्स बनाता है, और वर्ल्ड के सब मोटर्स वही बनाता है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स US कंपनी है, उसका TCS का प्रोजेक्ट है। TCS $1 बिलियन लेती है हर साल। TCS का जो कॉन्ट्रैक्ट है जर्नल मोटर के लिए वो $1 बिलियन का है। इतना एक चार्ज करती है TCS कंपनी, $1 बिलियन। फाइन। सो ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में इतना। विल बैक टू द टॉपिक नाउ। नेक्स्ट वी हैव अ GUI प्रोग्रामिंग। देखो अभी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने प्रोग्राम किया पाइथन का या C का प्रोग्राम आपने अभी लर्न किया हुआ है, वो किस टाइप का प्रोग्राम है, CUI। क्या है, CUI का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फाइन। सो दो टाइप का होता है, CUI है
GUI, CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? CUI जो होता है वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन, जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ कमांड्स, फाइन। वेयरएज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे हम इंटरैक्ट करते हैं फॉर्म से, लेआउट से, और जहां पे हम माउस यूज करते हैं। जैसे अभी आप ये दिख रहा है आपका नोटपैड, द नोटपैड एंड योर ब्राउजर, दे आर GUI प्रोग्राम। सो दो टाइप के प्रोग्राम आते हैं, एक CUI प्रोग्राम आते हैं और एक GUI प्रोग्राम। तो पाइथन में हम वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम पाइथन में CUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, फाइन। सो पाइथन ऑल्सो सपोर्ट GUI एप्लीकेशन। अगर आपको नोटपैड बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, वी कैन मेक दैट, फाइन, दैट इज कॉल्ड GUI। तो वहां पे आपको GUI का लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा जो हमारे सिलेबस में है। सो हम लोग लास्ट यूनिट है जहां पे हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे सेम लाइक अ विंडोज, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे बट समहाउ वी विल मेक लाइक दैट। वेट फॉर दैट। ये देखो ऐसा, ये जो एप्लीकेशन है ये GUI एप्लीकेशन है। सो वी कैन मेक, ओके, ऐसा हम एप्लीकेशन बना सकते हैं पाइथन के अंदर। यस, UI इतना बेटर नहीं बना सकते क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, बट यस वी कैन मेक लाइक दिस। इसको बोलते हैं GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे माउस यूज होगा इंटरेक्ट करने के लिए। वेराज जो हम प्रोग्राम अभी तक लर्न किए हैं C++ में, वो हम लोग ने लर्न किया हुआ है कौन सा? GUI एप्लीकेशन, और वो भी डेस्कटॉप बेस अभी लर्न करने वाले। और एक हम लोग ने वेबसाइट और वेब पेजेस ऑलरेडी हम लोग ने लर्न कर लिया हुआ है वेब प्रोग्रामिंग में। HTML CSS यूज करके, जावास्क्रिप्ट यूज करके हम लोग ने ऑलरेडी वेब पेजेस, बेसिक वेब पेजेस हम लोग ने बनाया था, फाइन। फॉर्म डिजाइनिंग किया था, HTML फॉर्म डिजाइनिंग, इफ यू ऑल रिमेम्बर। व्हाइट वॉश नहीं हुआ रहेगा तो। सो यहाँ पे भी ना लाइब्रेरीज है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसके लिए। सो GUI प्रोग्रामिंग के लिए भी लाइब्रेरीज अवेलेबल है किसके अंदर? पाइथन के अंदर। फिर लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट फीचर है वो कौन सा है? स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या होता है? पाइथन प्रोवाइड बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम देना शेल स्क्रिप्टिंग। सो वी कैन ऑल्सो राइट लार्ज प्रोग्राम इन अ पाइथन। लार्ज प्रोग्राम का मतलब होता है 5000 लाइन, 10,000 लाइन ऑफ कोड। लार्ज प्रोग्राम का मतलब होता है 5,000 10,000 लाइन ऑफ कोड या 1 लाख लाइन ऑफ कोड। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी हम पाइथन में परफॉर्म कर सकते हैं बेटर स्ट्रक्चर करके, और लार्ज प्रोग्रामिंग भी सपोर्टेड है पाइथन के अंदर, और वो स्केलेबल है। मतलब आप बड़ा प्रोग्राम लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा पाइथन उसको ये हैंडल नहीं कर पाएगा, इट विल हैंडल। सो पाइथन ऑल्सो सपोर्ट लार्ज प्रोग्राम एंड अ बेटर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। बेटर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? आप क्या करोगे? प्रोग्राम को एक ही फाइल में नहीं लिखोगे, आप प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल बनाओगे, अलग अलग फाइल में बनाओगे, और हर मॉड्यूल में अलग अलग फंक्शन बनाओगे। देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप पूरा कोड एक ही फाइल में नहीं लिखोगे, आप अलग अलग फाइल बनाओगे, और हर फाइल के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बनाओगे, मॉड्यूल्स के अंदर आप फंक्शंस बनाओगे। सो मॉड्यूल्स इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, फाइन। मॉड्यूल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। और फिर मॉड्यूल्स को कंबाइन करके आप लाइब्रेरी बनाओगे, और बहुत सारे लाइब्रेरी को कंबाइन करके आप पूरा एक एप्लीकेशन बनाओगे। दैट इज व्हाट इट्स पॉसिबल इन पाइथन, एंड दैट बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी ऑफ पाइथन, पाइथन कैन हैंडल दैट मच दैट लार्ज प्रोग्राम। सो इज देयर एनी डाउट इन फीचर्स ऑफ पाइथन? इच वर्ड, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, इंटरएक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेबल का मतलब क्या होता है, डेटाबेस क्या होते हैं, और GUI प्रोग्रामिंग एंड स्केलेबल। एग्जाम में ये क्वेश्चन थियोरेटिकली आता है, मतलब मे बी नहीं आएगा इस बार, बट 2 बार तो आ चुका है ये ऑलरेडी 4 इयर्स में, 2 टाइम्स इट केम। तो फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। कृष्णा, इंटरएक्टिव का मतलब डायरेक्टली हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर से। पाइथन के इंटरप्रेटर से डायरेक्टली हम उसको कमांड दे सकते हैं। So Python has a support of interactive mode which allow
मतलब हम डायरेक्टली कोड करके कोड जो डायरेक्टली लिख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में और उसको टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं कि कोड राइट है या नहीं. विल शो यू वंस अगेन, विल शो यू पाइथन. ये देखो ये स्क्रीन ओपन हो गया पाइथन का. लेट मी मेक अ स्मॉल फाइन. नाउ ये पाइथन का इंटरप्रेटर है. फाइन, यहाँ से कोड आपका ये होता है एग्जीक्यूट. अब मैं डायरेक्टली कोई कोड है ना, मैं उसको डायरेक्टली टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो कोड है वो राइट है या नहीं राइट है. मैं डिबग कर सकता हूँ. दैट आई कैन डू विद दैट एंड आई कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट. सो आई कैन राइट समथिंग लाइक 10 प्लस 100. फाइन, या मैं कोई फॉर्मूला लिख सकता हूँ 10 प्लस 2 minus 5 into 10 divide 2 and I can execute. I got minus 13. Fine. So this is what interactivity. You can directly interact or test your code or debug your code with your Python interpreter. Standard library मतलब predefined codes, predefined modules. जैसे आपका पहले से ही पाइथन के अंदर बहुत सारा कोड जो है, बहुत सारा प्रोग्राम ऑलरेडी फंक्शंस बनाया हुआ है और उसको हाँ map.py सॉरी main.py पाइथन का फाइल का एक्सटेंशन है. लाइब्रेरी मतलब कैसा रहेगा, मैं आप एक सेकेंड रुक जाओ. लेट मी शो डेट टाइम. देखो मैं डेट टाइम का दिखा रहा हूं. अगर आपको पाइथन में टाइम शो करना है, ध्यान से सुनो, पाइथन में अगर आपको टाइम दिखाना है, सिस्टम का टाइम क्या हो रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही कोड बना के रखा हुआ है पाइथन के अंदर. उस कोड को हम बोलते हैं लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मतलब पहले से ही कोड लिखा हुआ है. जैसे आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होता है ना, बहुत सारे बुक होते हैं वहां पे और वहां से आप जाके बुक को लेके रिफर कर सकते हो. वैसे पाइथन में बहुत सारे कोड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एक फोल्डर के अंदर, उसको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. फाइन, दैट इज व्हाट लाइब्रेरी मीन. लाइब्रेरी मीन्स प्री डिफाइंड कोड, कलेक्शन ऑफ कोड. सो पाइथन के अंदर अगर आपको देखो पाइथन के अंदर अगर आपको टाइम दिखाना है तो आपके लिए टाइम मॉड्यूल है. देखो टाइम मॉड्यूल है, इसको आपको अपने प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा. और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के बाद देखो ये इंपोर्ट किया. जैसे आप सी में क्या करते थे, इंक्लूड करते थे ना, हैश इंक्लूड, वैसे पाइथन में इंपोर्ट वर्ड यूज करते हैं. कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी नोटपैड यूज कर सकते हो. पाइथन का जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया आईडीएलई यूज कर सकते हो, पाइथन चार्म यूज कर सकते हो, कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो पाइथन के लिए. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर यूजिंग एडिटर. फाइन, पाइथन का इंटरप्रेटर खाली आपके कंप्यूटर में होना चाहिए. सो यू कैन यूज एनी नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, विजुअल स्टूडियो कोड, कोई भी यूज करो. और मेन डॉट पीवाई जो है वो फाइल का नाम है. फाइन, वो फाइल का नाम देना होता है, वो स्क्रिप्ट मोड है. सो देखो पाइथन में ऑलरेडी एक टाइम मॉड्यूल है, उसको हम अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं. फाइन, उसके बाद हम लोग टाइम फंक्शन को कॉल करो. टाइम फंक्शन है ये. टाइम आपका एक मॉड्यूल भी है और उसी टाइम मॉड्यूल के अंदर एक टाइम फंक्शन भी है. और उस टाइम फंक्शन से हम टिक लेंगे और फिर आप क्या करोगे, टिक को प्रिंट करोगे. सो विल डू दैट. देखो हम लोग करते हैं अभी इंटरप्रेटर मोड में करते हैं, इंटरएक्टिव मोड में करते हैं. फाइन, देखो यहाँ पे मैं भी यूज कर रहा हूं. क्या करूंगा, इंपोर्ट. अब टाइम करके ऑलरेडी एक मॉड्यूल बनाया हुआ है पाइथन के अंदर. फाइन, बना के दिया हुआ है. इसको अभी आप क्या करोगे, इंपोर्ट. इंपोर्ट कर लिया. जिसे हैश इंक्लूड करते थे आप सी में हेडर फाइल्स को, वैसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल. वहां पे हेडर फाइल बोलते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं. वहां पे हैश इंक्लूड वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट वर्ड यूज करते हैं. फाइन, उसके बाद आपको फंक्शन कॉल करना है. जो मॉड्यूल तो ले लिया ना आपने, बट उसका फंक्शन के कॉल के बिना डेटा नहीं मिलेगा. तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक वेरिएबल बनाया टिक्स करके.
टेक्स्ट वेरिएबल बना के आपने क्या किया, टाइम जो मॉड्यूल है उसमें एक फंक्शन है टाइम, टाइम मॉड्यूल का भी नाम है, टाइम फंक्शन का भी नाम है, चलेगा, वो राइट है। टाइम इज अ मॉड्यूल ऑल्सो एंड टाइम इज ऑल्सो फंक्शन इन टाइम मॉड्यूल। एंटर मारा, अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट व्हाट, टेक्स्ट। देखो अब आपको, देखो यहाँ पे टिक्स मतलब ये क्या है, मिली सेकेंड अपना टिक जो है आपको डेट टाइम नहीं देगा, टिक आपको क्या देगा, उसका ये कंप्यूटर का जो अपना मिली सेकेंड का पूरा टाइम दे दिया आपको, मिली सेकेंड में कंप्यूटर टिक्स दिया आपको, कितने टिक हुए। अगर आपको स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, तो उसके लिए अलग से फॉर्मेट है, टाइम टपल बोलते हैं इसको, तो टाइम टपल यूज करना पड़ेगा। अभी आपको ये आपको मिली सेकेंड्स में ये आपको मिलेगा, टाइम टाइम स्पैन में मिलेगा आपको, ये टाइम स्पैन है जो नंबर आया आपको। और यहाँ पे देखो ईयर्स के लिए दिया हुआ है ऑलरेडी, तो देखो अभी ये वाला कोड आपने इसको लोकल टाइम में कन्वर्ट किया, एक सेकंड में, वो खाली आपका मिली सेकंड में था, टाइम स्पैन में था। आपको अगर जैसा हम लोग देखते हैं अपने कंप्यूटर में वैसा आपको चाहिए तो उसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको लोकल टाइम जोन में। अपना इंडिया का टाइम जोन अलग है, यूएस का अलग टाइम जोन होता है, सबका अलग है। अपना ISTS है, फिर यूएस का अलग टाइम जोन में आता है। अभी इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट व्हाट, टाइम, इंपोर्ट टाइम। उसके बाद फिर मैं टिक जो था आपका, ये लाइन लोकल टाइम ले लिया और फिर आपने प्रिंट कर दिया क्या, लोकल टाइम। देखो यहाँ पे ईयर आ गया, देखो ईयर आया, मंथ 7 आ गया, 4 डे आ गया, आर कितना हो रहा है 13 बज रहा है ना, 13 मतलब क्या हुआ 24 वाला, 1 इट्स 1:30 तो 13 हो गया, 29 मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, डे वीक का डे क्या है, और फिर ये कितने डेज हुए, 186 डेज हुए। तो ये आपको पूरा मिल गया, पूरा डिटेल किसका, लोकल टाइम से। मतलब पहले आपको क्या मिल रहा था, मिली सेकेंड्स में आपको टाइम स्पेन में मिल रहा था, बाद में एक फंक्शन यूज किया आपने, टाइम डॉट लोकल टाइम। देखो टाइम डॉट लोकल टाइम एक और फंक्शन है, उसके अंदर आपने टाइम फंक्शन कॉल किया, तो टाइम फंक्शन ने आपको मिली सेकेंड में डेटा दिया, मतलब टाइम स्पेन में दिया आपको, और वो टाइम स्पेन को कन्वर्ट किया गया रियल डेटा के अंदर, ईयर के अंदर, मंथ के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट किया गया। सो दिस इज अ न्यू कोड, फाइन। तो देखो यहाँ पे इंपोर्ट, फिर उसको आपने टाइम डॉट लोकल टाइम में कन्वर्ट करवाया टाइम को। अगर आपको ऐसा चाहिए, देखो ये वाला, अगर ये फॉर्मेट में चाहिए, कौन से ट्यूसडे है आज ये, तो उसके लिए क्या है, देखो एक और फंक्शन है, 3 फंक्शन कॉल कर रहे हैं। पहले टाइम डॉट टाइम को कॉल किया, फिर उसको पास किया लोकल टाइम में, फिर लोकल टाइम को पास किया कौन से फंक्शन में, देखो बट सिंपल मेथड टू गेट टाइम इन रीडेबल फॉर्मेट। देखो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अगर चाहिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ASC टाइम। फाइन, सो आई विल कॉपी दिस, वन सेकंड, देखो कॉपी नहीं हुआ है, अभी प्रिंट करूंगा, ह्यूमन रीडेबल में आ जाएगा, जो हम लोग रीड कर सकते हैं। आया, देखो आउटपुट, अभी आया ना आपको,
सैटरडे जुलाई 4 13 32 ईयर, ये आपका रीडेबल फॉर्मेट है। सो बेसिकली टाइम मॉड्यूल के अंदर पहले अगर आप सिर्फ टाइम कॉल करोगे तो आपको पूरा टिक्स में मिलेगा, पूरा मिली सेकेंड्स के अंदर आपको टाइम स्पैन में फॉर्मेट में मिलेगा। फिर उसको अगर आपको और थोड़ा फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको लोकल टाइम फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। और अगर आपको चाहिए तो ASC टाइम करके फंक्शन है जो आपको रीडेबल फॉर्मेट देगा। सो 3 फंक्शन यूज हुआ यहाँ पे। ASC टाइम फंक्शन, उसके अंदर पास किया टाइम डॉट लोकल टाइम, और लोकल टाइम फंक्शन के अंदर कॉल किया टाइम डॉट टाइम फंक्शन। सो 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन। सो 3 फंक्शन यूज करके आपने रीडेबल टाइम, आपने सिस्टम का करंट डेट टाइम शोकेस किया। अगर आपको कैलेंडर चाहिए, मतलब आपको कैलेंडर पूरा दिखाना है, देखो यहाँ पे कैलेंडर। सो कैलेंडर करके अलग से मॉड्यूल है, कैलेंडर मॉड्यूल को इंपोर्ट करो। कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर मंथ फंक्शन है, उसमें ईयर और मंथ पास करो। तो जनवरी मधो ईयर 2008 का जनवरी चाहिए मुझे, जनवरी का, तो मुझे कैल प्रिंट हो गया। फाइन। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम है ना, इसको मैं एक काम करता हूं। अभी तक हम लोग ने इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग की, बरोबर। वी डन इन व्हाट मोड? इंटरैक्टिव मोड। फाइन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट, अभी हम लोग स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। इंटरैक्टिव मोड हो गया, अभी फाइल बनाएंगे। तो देखो फाइल बनाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लगेगा पाइथन। अगर आपने वो पाइथन इंस्टॉल किया ना python.org से, तो आपको ये पाइथन का आइडियली मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर राइट क्लिक, न्यू फाइल, यहाँ पे पेस्ट कर दो। कोड सिंपल है। कोड सिंपल क्या है, आपने कैलेंडर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, और कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर मंथ फंक्शन है। मंथ फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास करना है, एक ईयर पास करना है, एक मंथ पास करना है। सो आई विल पास 2020, फाइन, एंड हियर आई विल पास 7 मंथ, एंड आई विल प्रिंट दैट मंथ। पूरा कैलेंडर प्रिंट हो जाएगा। आई विल सेव दिस, पहले मुझे ये सेव करना पड़ेगा। मैं पहले ये सेव करूंगा फाइल को। फाइल को मैं सेव क्या करूंगा, मंथ डॉट py, सेव। अब ये सेव हो गया। अब इसको रन करना है, तो राइट क्लिक, यहाँ पे जाओ, रन द मॉड्यूल। ठीक है, इस पे क्लिक करो, रन मॉड्यूल पे। एक सेकंड। हाँ, अभी ये पुराना, ये नया वर्जन है, तो इसमें आपको इसको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ता है। फाइन, डबल कोड के अंदर, डबल कोड के अंदर आपको ये करना पड़ेगा। फाइन, सेव कर लो वापस इसको और रन करो। रन व्हाट मॉड्यूल। अगेन ये भी आपको डबल इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्जन नया है। न्यू वर्जन में आपको प्रिंट डायरेक्ट नहीं करोगे, ब्रैकेट के अंदर ही करोगे। अपडेट किया है उन्होंने। नाउ आई विल रन अगेन। आ गया, देखो जुलाई का पूरा कैलेंडर आ गया। ये आपका कौन सा मोड हो गया, स्क्रिप्ट मोड हो गया। विच इज मोड, स्क्रिप्ट मोड। फाइन, दिस इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट मोड। सो कोड देखो, वेरी सिंपल। जस्ट यू नीड टू इंपोर्ट कैलेंडर मॉड्यूल, देन यू हैव टू कॉल function method of calendar. So calendar dot function, you have to pass two parameter. First is year, second is a month. After passing that, calling this function, this will return the object, and that will store in cal, and you can directly print that cal को प्रिंट करोगे डायरेक्टली, आपको क्या आ जाएगा, टेबुलर फॉर्मेट में पूरा का पूरा मंथ का कैलेंडर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। टाइम के लिए ऑलरेडी हमने बता दिया, टाइम मॉड्यूल है। टाइम मॉड्यूल में टाइम फंक्शन है, लोकल टाइम फंक्शन है, और AC टाइम करके फंक्शन दिया हुआ है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सबको समझा? कोई डाउट मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स को कैसे यूज करते हैं? मेरा कैलेंडर नहीं है।
लिसन, एक कैलेंडर सिस्टम से आ रहा है। 4 तारीख है ना, देख इधर, 4 को क्या है, सैटरडे है ना, 4 को सैटरडे है, और कल 5 है, तो 5 को क्या है, संडे है। और लिसन, अगर अब रॉन्ग भी रहा ना तो देखो, अगर एक एग्जांपल देते हैं, चलो मैं सिस्टम का क्या करूंगा, अगर मैं सिस्टम का मेरा कैलेंडर चेंज कर दूंगा ना, टाइम जोन चेंज कर दूंगा ना, तो ये रॉन्ग दिखाएगा। डिपेंड करता है हर यूजर वाइज, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी रहेगा वही दिखाएगा आपको, और हर यूजर का अलग अलग दिखा सकता है। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज कैलेंडर मॉड्यूल एंड टाइम, दोनों को यूज कर सकते हैं। टाइम भी दिखा सकते हो, कैलेंडर, तो 2 मॉड्यूल है। अगर आपको टाइम चाहिए रहेगा तो टाइम मॉड्यूल यूज करो, अगर कैलेंडर चाहिए रहेगा तो कैलेंडर मॉड्यूल यूज करो। मॉड्यूल यूज करने के लिए कोड क्या है, इंपोर्ट, दैट इज व्हाट इंपोर्ट। फाइन, अभी देखो व्हाट वी कैन डू दैट, हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग निकाल लिया था ना, अभी यूजर से इनपुट लेने वाला करते हैं, और स्क्रिप्ट मोड, यूजर से फाइल न्यू बनाते हैं। अभी एडिशन ऑफ नंबर का ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है, अभी फाइल बना के कर रहे हैं, और अभी यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, सो विल टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर। तो पाइथन में अगर आपको इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन है, समझा आप? प्रिंट फंक्शन, इनपुट, प्रिंट किसके लिए, आउटपुट के लिए। और अगर आपको कीबोर्ड से डेटा लेना है, इनपुट लेना है, तो इनपुट फंक्शन है, सिंपल। सी में क्या था, स्कैनफ था, स्कैनफ। और सी प्लस प्लस में सी इन था। यहाँ पे क्या है, इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने मैसेज डाला, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है, ये फंक्शन है। सो इनपुट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड अ कीबोर्ड। अब वो जो डेटा इनपुट कर रहे हैं ना हम लोग, वो डेटा का फॉर्मेट टेक्स्ट है, टेक्स्ट। तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, नंबर में। तो इसके लिए क्या लिखा हम लोग ने, इंट। तो इंट फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन कॉल किया। क्यों किया मैंने कॉल, बिकॉज आई वांट टू कन्वर्ट द टेक्स्ट डेटा इनटू नंबर डेटा। जैसे मैं सी लैंग्वेज में हम लोग %d स्पेसिफाई करते थे कि वो जो इनपुट ले रहे हैं वो नंबर है। अगर हम लोग f करते थे तो वो फ्लोट होता था, अगर c करते थे तो कैरेक्टर, और s करते थे तो स्ट्रिंग। सेम हियर, आप जो भी डेटा इनपुट ले रहे हो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर के अंदर, तभी आएगा। फाइन, तो विल सी दैट आउटपुट। देन मैं आपको इसको बिना इनपुट फंक्शन, बिना इंट फंक्शन के रन करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा। सो विल सेव दिस फंक्शन, fine, save, will write as a add py, then save. Now what we will do that, run करेंगे। पूछा, enter the number 100, enter the number 500, we got that 600, fine। अब हम लोग क्या करेंगे, ये int फंक्शन को निकाल रहे, मैं रिमूव कर रहा हूं int फंक्शन को, आई एम रिमूविंग दिस int फंक्शन। सो सी व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट तो आएगा। सेव कर रहा हूं और रन करूंगा वापस।
अभी वापस डालूंगा 100 500 क्या आया देखो 1,05,000 सो कॉन्केनेट हुआ ये क्या हुआ कॉन्केनेट हो गया प्लस हो गया 100 प्लस 500 600 नहीं हुआ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में a प्लस ए करोगे तो डबल ए होगा a प्लस ए करोगे तो डबल ए हो जाता ना तो ऐसा स्ट्रिंग है ये तो 100 प्लस 500 ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ ये कॉन्केनेटेशन हुआ कॉन्केनेटेशन का मतलब दो चीजों को ज्वाइन कर दिया तो 100 एंड 500 ज्वाइन हो गया तो ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग कॉन्केनेट होता है और नंबर कंप्यूट होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो देखो आउटपुट क्या आया यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट में भी ये इशू था हम लोगों ने लर्न किया था जावास्क्रिप्ट में भी तो यहाँ पे आपको बिना इंट के अगर आप करोगे इंट फंक्शन में कन्वर्ट किए बिना तो आपको आउटपुट ये आएगा अगर इंट फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको आउटपुट एक्चुअल आउटपुट आएगा सेव कर रहा हूं विल रन अगेन थाउजेंड so this is our next program addition of two number using user input fine all of you understood fine बाकी लोग ऑफलाइन चले गए नेट बंद हो गया लगता है ड्राइंग मत करो 1 second बारिश हाँ तो हैवी रेन की वजह से हो सकता है इंटरनेट इशू है इवन मॉर्निंग में नहीं हो रहा था स्टार्ट 11 o'clock को मैंने ट्राई किया था तो नहीं हुआ और मेरा दूसरा एक सेशन था तो फिर उसके से लेट हो गया 12:45 ठीक ही है टाइम फिर अच्छा अभी कितने लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया मोबाइल में या फिर लैपटॉप में हाउ मेनी ऑफ यू इंस्टॉल्ड दैट पाइथन प्रोग्राम सर मैंने नहीं किया है सर अभी तक तुम करो भी मत भैया व्हाट अबाउट अदर्स लैपटॉप में किया सर लैपटॉप लखनऊ में है मोबाइल में मैं कर सकता लखनऊ है में हूँ आज शाम को लखनऊ जाऊंगा मोबाइल में जिसके पास लैपटॉप नहीं है दे कैन डू इन मोबाइल में आता है पाइथन फाइन सर लखनऊ जा रहा हूँ शाम को करता हूँ जाके लैपटॉप में ओके सो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो पाइथन एनवायरमेंट था पाइथन इज अवेलेबल फॉर वाइड वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग लिनक्स एंड मैक फाइन सबके लिए आता है पाइथन इतने सारे देखो पाइथन इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आता है यूनिक्स के लिए आता है विंडोज के लिए आता है मैकिनटॉश के लिए आता है डॉस के लिए आता है पाम ओएस के लिए आता है नोकिया मोबाइल फोन के लिए आता है विंडोज सीई के लिए आता है ये इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे लोगों का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा पाइथन हैज आल्सो पोर्टेड टू जावा एंड .NET वर्चुअल मशीन वो .NEट और जावा में भी पाइथन सपोर्ट करता है नाउ सो पाइथन को इंस्टॉल करने का सबसे इजी तरीका क्या है आपको जाना है python website.org पे www.python.org पे जाओगे और सबके पास ऑलमोस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है फाइन और वो बहुत इजी है एक MSI फाइल डाउनलोड होगी देखो एक फाइल डाउनलोड होगी एक सी उसको इंस्टॉल करना है बट अगर आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है यूनिक्स और लिनक्स पे
तो उसके लिए आपको अलग प्रोसेस होगा। ब्राउजर में ओपन करोगे, फाइल डाउनलोड होगी जिप में, उसके बाद आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको स्क्रिप्ट सेटअप करना पड़ेगा, और उसके लिए अलग सा प्रोसेस है लिनक्स और यूनिक्स के। राइट नाउ किसी के पास यूनिक्स और लिनक्स नहीं है, सो वी विल फॉलो दिस विंडोज इंस्टॉलेशन। और विंडो इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। आपको ये फाइल मिलेगी पाइथन का वर्जन .msi, माइक्रोसॉफ्ट का फाइल होता है ये, और दैट इज कॉल्ड exe फाइल या तो msi फाइल होती है। इसको आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। विजार्ड आएगा, देखो पाइथन इंस्टॉलेशन विजार्ड आएगा, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, दैट्स इट। बाकी कुछ इंस्टॉलेशन में इशू नहीं। हाँ, अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर मैक का है, यूनिक्स है, देन आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। देखो यूनिक्स और लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इवन आपको विंडोज में क्या होता है ना, आपको ये देना पड़ता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल जो होता है वो सेटअप करना पड़ता है, वो भी जरूरत नहीं है करने का, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल पाइथन आईडीई कर रहे हैं। फाइन, तो देखो ये पाइथन आईडीई, आपको अगर आईडीई के बिना काम करना है तो लंबा प्रोसेस करना है, नहीं तो आईडीई आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपको इंटरेक्टिव भी मिल जाएगा, और पाइथन देखो यहाँ पे पाइथन आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, दैट इज 3.9, इसके अंदर आपको प्रोग्राम लिखना है। फाइन, ये आपका एडिटर हो गया, लाइक अ नोटपैड। इसी के अंदर आपको क्या करना है, फाइल न्यू करके इसमें प्रोग्राम लिखना है, सेव करना है, रन में जाके रन मॉड्यूल करना है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई सेटअप या कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और वो भी किसके लिए है, सिर्फ मैकिंटॉश, यूनिक्स और लिनक्स के लिए इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सेटअप का। सो दैट पाइथन आईडी डालो, दैट्स इट इनफ। एनवायरनमेंट ये जो इंस्टॉलेशन का सेटअप है वो आपका स्किप हो जाएगा। फाइन, ओके। पाइथन का बेसिक सिंटैक्स आपको आ ही गया ऑलरेडी। द पाइथन लैंग्वेज हैज मेनी सिमिलरिटी टू सी एंड जावा, हाउएवर देयर आर सम डिफाइंड डिफरेंसेस बिटवीन। अभी देखो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है और कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो सी के सी लैंग्वेज की तरह ही आपका सिंटैक्स, इट्स लुक लाइक अ सी लैंग्वेज, बट कुछ अलग भी है, क्योंकि वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं, और ये यूज करते हैं सेमीकोलंस एंड ऑल, वो यहाँ पे यूज नहीं करते। फाइन, पाइथन के अंदर। और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बहुत सिंपल है, प्रिंट फंक्शन डबल कोट में डाल दोगे तो आपका देखो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, if you are running a new version of Python then you would need to use print statement with parenthesis। देखो ये आपको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। However, अगर आपके पास पाइथन का पुराना वर्जन है 2.4 तो आपको बिना पैरेंथेसिस के यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास जो पाइथन है वो कौन सा वर्जन है, 3.9 है, 3.7 है मेरे पास वर्जन है। So I have to use what parenthesis for a print function। अगर 2.4 वाला वर्जन होगा जो विंडोज 7 में चलता है, वो वाला वर्जन में आपको पैरेंथेसिस यूज नहीं करना है। फाइन, ये की डिफरेंसेस है प्रिंट स्टेटमेंट का अगर वर्जन वाइज। फिलहाल सबके पास विंडोज 10 है और सबके पास लेटेस्ट वर्जन ही है पाइथन का, कंसीडर करेंगे। 2.4 वो पुराने ओएस में चलता है, विंडोज 7 में चलता है, एक्सपी में चलता है, तो वो भी अभी आउटडेटेड हो चुका है। फाइन, माइट भी पाइथन उसको बंद भी करके डिस्कार्ड कर दे वो वर्जन को। सो आपको हमेशा पाइथन प्रिंट फंक्शन यूज करना है, पैरेंथेसिस के अंदर यूज करना है। और आपको एक और ऑप्शन है, आप फाइल बना भी सकते हो, फाइल बना के भी रन कर, जैसे भी हम लोग ने फाइल बनाया था। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग ये दो टॉपिक पे, फिर ये दो टॉपिक करके हम लोग सेशन को एंड करेंगे। फाइन, सो दीज आर टू टॉपिक जो हम लोग ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। कौन सा, पाइथन आइडेंटिफायर्स और रिजर्व कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, दीज आर टू टॉपिक विच इज ऑलरेडी लर्न्ड। आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में C++ में। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर और अ नेम विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई आइडेंटिफाई वेरिएबल नेम। सो जो भी नाम हम फंक्शन को देते हैं, वेरिएबल को देते हैं, क्लास को देते हैं, मॉड्यूल को देते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, बिकॉज नेम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। फाइन, so Python identifier is a name used to identify
वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट। सिंपल टर्म में बोलूं, पाइथन आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, एनी क्लास, एनी फंक्शन, एनी मॉड्यूल इज कॉल्ड एज नथिंग बट आइडेंटिफायर। व्हेयरएज रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, जो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड है और उसका स्पेशल मीनिंग है, उसको हम यूज नहीं कर सकते अपने पर्पस के लिए। फाइन। सो आइडेंटिफायर हमेशा स्टार्ट होना चाहिए किससे? लेटर से। ये रूल्स है। आप जब भी वेरिएबल बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, मॉड्यूल बना रहे हो, तो हमेशा उसका जो नाम होगा वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। इट कैन बी कैपिटल और इट कैन बी स्मॉल और अंडरस्कोर। फाइन। तो लेटेस्ट आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ लेटर, कैपिटल और स्मॉल और अंडरस्कोर। मतलब या तो आप लेटर से स्टार्ट करो, कैपिटल स्मॉल, या तो अंडरस्कोर से यूज करो, और फॉलोड बाय, उसके बाद आप यूज कर सकते हो नंबर्स को, डिजिट्स को, 0 और 1। पाइथन डज नॉट अलाउ, पाइथन देखो हमेशा याद रखना, आइडेंटिफायर जो भी होगा उसका जो वर्ड स्टार्ट होगा, लेटर होगा, वो पहले अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, लेटर से, कैपिटल, स्मॉल और अंडरस्कोर, उसके बाद नंबर आएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एज @ $% within identifier. So special character are not allowed. फाइन। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है पाइथन आइडेंटिफायर के अंदर। पाइथन आइडेंटिफायर के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स और पंक्चुएशन कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पंक्चुएशन कैरेक्टर्स व्हिच इज नॉट अलाउड विद इन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शन, किसी वेरिएबल को नाम दे रहे। अभी ये जो है ये क्या है? मेरा वेरिएबल है। कैल्क इज व्हाट? माय वेरिएबल। फाइन। whereas calendar is also identifier, so it's identifier for module and this is an identifier what? Variable के लिए identifier। ये variable हो गया identifier और ये module identifier हो गया। अब देखो एक और वर्ड, Python is a case sensitive। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? कैपिटल और स्मॉल, अगर आपके पास दो वेरिएबल है, एक कैपिटल लेटर में एक स्मॉल, दोनों अलग है। फाइन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कैपिटल और स्मॉल केस दोनों अलग अलग होता है। सो अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, मैन पावर, एक एम कैपिटल है और एक में एम स्मॉल है, दोनों अलग आइडेंटिफायर है। फाइन, बिकॉज ऑफ पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल वो केस इनसेंसिटिव है। वहां पे कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कैमल केस में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। So these are 2 points you have to remember while declaring a identifier in a Python. The first one is it doesn't allow any punctuation character, any special character. Second, the Python is a case sensitive. That means the capital and small letter are distinct and they are different identifier. फिर वापस कुछ rules है. There are some naming conventions. There are some rules for a Python identifier. फर्स्ट, क्लास का नाम जो होता है, क्लास नेम स्टार्ट विथ अपर केस। लाइक इन C++ प्रोग्रामिंग वी यूज टू डिक्लेयर व्हाट? क्लास। क्लास बनाते थे, तो वहां पे सेम यहाँ पे अगर आप पाइथन में क्लास क्रिएट करोगे, सो वी हैव टू यूज व्हाट? अपर केस लेटर। सो जो भी क्लास का नाम होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा एंड ऑल अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर। सो जितने भी बाकी के आइडेंटिफायर होंगे, दैट इज योर वेरिएबल, योर मॉड्यूल नेम, योर फंक्शन नेम, उनके जो आइडेंटिफायर होंगे उनका स्मॉल लेटर यूज होगा, whereas क्लास के लिए कैपिटल लेटर अपर केस यूज करना पड़ेगा। सेकेंड, आइडेंटिफायर स्टार्टिंग विथ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट। अगर कोई आइडेंटिफायर स्टार्ट हो रहा है सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर, उसका मतलब क्या होता है? वो प्राइवेट आइडेंटिफायर है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूं कैल्क के अंदर, if I am using a single underscore with identifier, it mean it's a private वाला कॉन्सेप्ट पता है ना? एक्सेस मॉडिफायर। all of you remember about that private public C++? Yes, sir. Yes, sir.
या सर, प्राइवेट पब्लिक सर। याद है? ओके फाइन। सो देखो यहाँ पे अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर अगर यूज कर रहे हो, एक ही अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर, तो वो प्राइवेट है। अगर डबल कर सकोगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। सिंगल अंडरस्कोर, स्टार्टिंग एंड आइडेंटिफायर, देखो स्टार्टिंग एंड आइडेंटिफायर टू लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। एक तो नॉर्मल प्राइवेट होता है, सिंगल अंडरस्कोर लगाओगे तो नॉर्मल प्राइवेट, डबल अंडरस्कोर लगाओगे तो स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। इफ आइडेंटिफायर ऑल्सो एंड विथ ट्रू ट्रेलिंग अंडरस्कोर, अगर वो एंड भी हो रहा है ट्रू ट्रेलिंग से, तो वो क्या हो गया? इज डिफाइंड एज अ लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम। तो ऐसा हो सकता है, इज एंड विथ ट्रू ट्रेलिंग अंडरस्कोर, तो वो स्पेशल डिफाइंड लैंग्वेज डिफाइंड नेम होगा सिस्टम का। अब देखो रिजर्व वर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, दे हैव अ स्पेशल मीनिंग, वी कैन नॉट यूज देम। देखो यहाँ पे लिखा है, यू कैन नॉट यूज देम एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम। हम लोग इन रिजर्व वर्ड्स को किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। फाइन, आइडेंटिफायर के रूप में हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। इट्स नॉट अलाउड टू यूज आइडेंटिफायर रिजर्व वर्ड एज एन आइडेंटिफायर। सो दीज आर द वर्ड्स। फाइन, ये वर्ड्स की लिस्ट है और इन वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते। कुछ कॉमन वर्ड्स आपको पता है, इंपोर्ट पता है, इफ पता है, वाइल पता है आपको, तो प्रिंट भाई, पता है, नॉट पता है, और पता है, कंटिन्यू ब्रेक पता है आपको, एंड पता है, एल्स पता है। ये सब आपको ऑलरेडी यू नो ऑलरेडी मैन, ये आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। इफ वर्ड का मीनिंग अलग है। रेज These are ग्लोबल few देखिए। common words we know already. Which one? If, else, while, return, and, or, not. These are the word. Finally, catch, break, continue. ये सब रिजर्व वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। वी कांट, इट्स नॉट अलाउड टू यूज देम फॉर अ आइडेंटिफायर नेम्स। Fine, okay. So that's it for today. We'll end the session here. We'll continue tomorrow from the next topic, that is the lines and indentations. And you all should install that Python software at python.org से आप, and do all practicals what we done today, time, ओके। calendar, and that addition of two number using input. Okay. जी सर। Yes. All videos are recorded. Fine. Video recorded है, cloud पे है, will shares करूंगा मैं वीडियोस रिवीजन करने के लिए। तो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो उसके वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, विल शेयर। एंड दैट क्रैश कोर्स विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। तो भी मैं अपडेट करूंगा वेब डेवलपमेंट का, डोंट वरी ठीक है अबाउट सर, इट। ठीक है। अभी व्हाट आई विल डू, अभी मैं एक गूगल क्लासरूम में ये बना रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में गूगल क्लासरूम क्रिएट कर रहा हूँ, वहां पे आप सबको ऐड करूंगा, वहां पे आपको सब पीडीएफ वीडियोस और ऑल सब शेयर करूंगा वहां पे। व्हाट्सएप पे नहीं करूंगा, गूगल क्लासरूम में करूंगा। फाइन, ठीक है सर। मेरा गूगल क्लासरूम, वहां पे हम लोग सबको ऐड, मैं आपको ऐड करूंगा। उसके बाद वहां पे ही वीडियोस, वहां पे ही पीडीएफ, और आपको टेस्ट जो भी देना रहेगा एमसीक्यू बेस्ड, सब वहां पे ही आपको देना रहेगा। असाइनमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे। तो मैं आज बता दूंगा आपको, गूगल क्लासरूम वहां पे ऐड करूंगा सबको।
हेलो।